Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all will be fine by the grace of Almighty Allah. Today my topic is about attention. I have already given you the lecture on perception. Now today my topic is about अटेंशन. व्हाट इज़ अटेंशन? एज ऑल ऑफ वी नो, अगर हम उर्दू का मीनिंग अटेंशन को देखें यानी कि किसी की ओर तवज्जो देना, अटेंड करना, किसी चीज़ की ओर अटेंटिव रहना. सो now coming to the topic attention in psychology, it means the concentration or awareness on some phenomena to the exclusion of other stimuli and response. Stimuli का मतलब होता है जो हम इंसान को देते हैं और उसको वो उसी का रिस्पॉन्स हमें मिलता है. Attention is awareness of the here and now in a focal and perspective way. There are for concentration attention on a task, a conversation or a set of events. हर एक चीज़ के ऊपर attention. सपोज़ हम क्लासरूम में बैठे हैं और हम जो स्टूडेंट्स हैं उनको टीचर की ओर अटेंटिव रहना है ताकि उनको हर कोई चीज़ समझ आए. एंड जो मेंटली फिट होते हैं अगर वो अपना अटेंशन पूरी तरीके से किसी चीज़ पे दे, दैट मीन्स वो इंसान वो उनको ईज़िली समझ पाता, कूप अप कर सकता है उस चीज़ के साथ. वो इंसान जो प्रॉपरली अटेंटिव रहता है, हर कोई चीज़ की ओर अटेंशन देता है, अटेंटिव रहता है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटेंशन. सपोज 4 different types of attention, that is selective or a focus on one thing. As I told you, there are 4 different types of attention. Selective or a focus on one thing at a time, focus on 2 events at once, focus on for a long period of time, and fourth is focus on completing steps to achieve a goal. These are some of the different types of attention. पहला कि आपका फोकस एक चीज़ पे है एक टाइम पे. दूसरा आपका फोकस या आपका अटेंशन 2 चीज़ों पे है एक टाइम पे. एंड आपका फोकस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम है. एंड आपका फोकस फोर्थ एंड लास्ट आपका फोकस है यू हैव टू गिव अटेंशन, यू हैव टू बी फोकस्ड ऑन completing steps to achieve a goal. Effective attention is what allows us to screen out irrelevant stimulation in order to focus on the information that is important in the moment. This also means that we are able to sustain attention, which then allows us to engage in a task for a long enough to repeatedly practice it. Attention-seeking behavior may stem from jealousy, low self-esteem, loneliness as a result of a personality disorder. Attention जो है it may stem out. Attention कैसे? अगर किसी कोई 2 इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग, उनको एक दूसरे की जेलेसी होती है तो लो सेल्फ़ एस्टीम होता है या लोनलीनेस. इससे क्या होता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते हैं. अगर किसी को किसी की जेलेसी होती है और उस जेलेसी में वो कुछ ऐसा काम कर जाता है कि वो उस इंसान के जैसे बने. लेकिन हर कोई इंडिविजुअल अलग है इस दुनिया में, हर किसी की अपनी अपनी पहचान होती है. कोई किसी के लिए ना ही कुछ कर सकता है, ना ही ज़रूरत है किसी के लिए कुछ करने की या किसी के जैसे बनने की. आप जैसे हो वैसे ही इंसान अपना जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सेल्फ़ एस्टीम है, अब सब कुछ वो जो है वो आपको अपने लिए रखना है या आप दूसरे के जैसे बनने की कोशिश नहीं कर सकते हैं या नहीं बन सकते हैं. हर किसी का अपना अपना लाइफ का पर्सपेक्टिव होता है देखने का. तो इससे क्या होता है? इन चीज़ों से जो जेलसी होती है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, लोनलीनेस होती है, इनसे क्या होता है? पर्सनालिटी डिसऑर्डर आता है. इफ़ यू नोटिस दिस बिहेवियर इन यू और समवन एल्स, अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल कैन प्रोवाइड डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट. अगर आपको लगता है दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इन यू, what you have to do, you have to go to a psychologist so that you can get a better treatment and he may provide you or she may provide you a better diagnosis. Attention is defined as the act of concentration and keeping one's mind focused on something. A student seriously focusing on her teacher's lecture is an example of someone in a state of attention. At various times, attention has been associated with clarity of perception, intensity of perception, consciousness, selection, or the allocation of a limited resources, enabling various operations. Attention is selective
there are some of the, we can say, nature of, what is the nature of the attention is, first of all attention is selective. आपका इधर अटेंशन इज सिलेक्टिव का मतलब ये होता है कि आपका अटेंशन एक पर्टिकुलर चीज़ की ओर सिलेक्टिव, यानी आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की ओर अटेंशन है, दैट इज़ सिलेक्टिव. अनदर इज़ अटेंशन हैज़ शिफ्टिंग नेचर and attention is has cognitive, affective and cognitive nature. Attention has narrow range and attention needs motor adjustment. These are some of the nature of the attention. Attention जो है उसमें पहली ही बात है, इसको नैरो रेंज है एंड इसमें मोटर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है. ये मोटर एडजस्टमेंट हमारी फ़िज़िकल हेल्थ की तरफ इशारा करते हैं कि हमारी जो मोटर एडजस्टमेंट है दैट शुड बी, फ़िज़िकल हेल्थ जो है दैट शुड बी वेरी गुड. जो मेंटली डिसेबल होता है इंसान, मेंटली डिसेबल होता है, वो बंदा कभी भी ना ही वो अटेंशन सीकर होता है, ना ही वो कभी भी अटेंटिव रहता है कहीं, क्योंकि वो अपनी ही एक दुनिया में रहता है. इसीलिए जो अटेंशन गेनर सीकर होता है या जो अटेंशन अपनी ओर कोई इंसान ऐसे कुछ करता है जिसकी वजह से अटेंशन जो है वो सारा उसकी ओर जाता है, दैट मीन्स वो मेंटली परफेक्ट है. मेंटली जो इल होगा ना ही वो अटेंशन दे पाता है, ना ही वो किसी का अटेंशन गेन कर सकता है. लेकिन अब अगर हम एज अ नर्सेस देखें कि हमारे सिलेबस में अटेंशन का टॉपिक क्यों है, हम तो नर्सेस हैं, हमारा और अटेंशन का काम क्या है. लेकिन जो ये अटेंशन है एज अ नर्सेस, यहाँ पे हमें इसलिए ये बोला गया है, हमें अटेंशन अपने पेशेंट्स की ओर देना है, हमें अटेंटिव रहना है कि पेशेंट्स क्या बोल रहे हैं, हमें ऐसा फीडबैक मिलना चाहिए कि लगना चाहिए कि नहीं, जो नर्सेस है दे वर अटेंटिव, दे लिसन ऑल द थिंग्स ऑफ द पेशेंट्स, ऑल द क्यूरीज ऑफ द पेशेंट्स, सो दैट you can get a good feedback from the patients also and you will become a good professional nurses by that. because जो attention होता है, जब आप attentive नहीं रहोगे कि patient बोल क्या रहा है, automatically आपको पता नहीं चलेगा कि patient को problem क्या है. और जब आपको ये नहीं पता चलेगा कि patient की problem क्या है, आप how can you diagnose the patient? As a nurses you have to be very attentive towards what the patient will tell you, what are the queries of the patients and how those queries are to be solved by you. ये सारा कुछ आपको पता होना चाहिए, तब जाके आपको एक अच्छा फीडबैक मिलेगा एंड यू विल बी वेरी मच सेटिस्फाइड विद योर प्रोफेशनल वर्क. इफ़ यू विल नॉट बी अटेंटिव or you will not pay attention towards the patient or towards the whatever who the attendants are with the patients, you have to listen to them very patiently, you have to be very attentive. ये नहीं only for nurses है but for doctors also. अगर doctors भी नहीं patiently या attentively patient की बात सुनेंगे तो वो लोग भी नहीं समझ पाएंगे कि patient की problem क्या है. It's not only with these professional professions, it is also with the profession of teacher. अगर student and teacher, अगर student अच्छे से नहीं सुनता है, properly attentive नहीं रहता है, तो he is not able to understand the things. अब अगर teacher नहीं properly सुनेगा अपने स्टूडेंट की क्यूरीज, तो वो वहाँ पे क्या हो जाता है कि ना ही स्टूडेंट को समझ आती है बात और ना ही टीचर बोल पाता है उसकी क्यूरीज का सल्यूशन, जिसकी वजह से एज अ रिज़ल्ट बोथ ऑफ देम आर इन अ लॉस. इसीलिए जो नर्सेज हैं दे हैव टू बी वेरी अटेंटिव इन विद देयर प्रोफेशन, विद द पेशेंट्स, विद द इंटेंट ऑफ द पेशेंट, सो दैट दे कैन गेट अ गुड फीडबैक and can diagnose the things very well. I hope you all understand it. It was all for today. Thank you so much.